Hello dear student, welcome to the lecture. In today's lecture, we will learn the methods of estimation, qualitative analysis of organic compounds. Okay, so we know that we can do the analysis of compound by two methods, that is qualitative and quantitative. So in this lecture, we will deal with the quantitative analysis of organic compound. So we have organic compound. So we know that organic compound contain mainly carbon, hydrogen, okay, and some heteroatoms are there, okay, oxygen, nitrogen, different functional groups are there, okay. So how to estimate the amount of element which is present in the organic compound? Suppose we have the organic compound, how much percentage of carbon is present in organic compound, how much percentage of hydrogen, okay. So because we deal with the quantity, okay, so there are some methods which can be helpful for the estimation of organic compound, quantitative estimation. So first of all, we will learn the methods for estimation, okay. So we have different methods. So first method, that is for estimation of nitrogen. Estimation of nitrogen. So nitrogen can be estimated by two ways. We have different method, Dumas method, and second one, that is Jaldan method. Jaldan's method. Then we have second one, that is estimation of halogens. And we have third one, that is estimation of sulfur. So estimation of these halogens and sulfur, they are done by the Carius method. So in today's lecture, we will learn the method for the estimation of nitrogen, and that method is known as Jaldan method. So we will learn today Jaldan method. So already we have tested here the experimental setup. So this is Jaldan method. I will put the heading here. So this is our Jaldan method setup. So this method is useful for the estimation of nitrogen. How much percentage of nitrogen is present in organic compound? Okay. So here we have the Jaldan class. This one. Organic compound is taken in a Jaldan class. We have here organic compound. Okay. Then we are adding the H2SO4 organic compound plus sulfuric acid H2SO4. Okay. We are adding sulfuric acid. So what happens whenever sulfuric acid react with the organic compound? So there is formation of the ammonium sulfate. Okay. So what happens? This nitrogen from the organic compound is released and there is formation of ammonium sulfate. Okay. Organic compound, when react with the sulfuric acid, there is formation of ammonium sulfate. And this reaction occur in the Jaldan class. We have taken organic compound and sulfuric acid. Then in the same class we have added some potassium sulfate. What we have added? We have added potassium sulfate. This potassium sulfate is acting as a boiling point elevator. So we know the meaning of boiling point elevator means which increases the boiling point, isn't it? So normally it requires higher temperature, therefore it increases the boiling point of the given liquid and up to the 100 to 200 degrees centigrade. Okay, 100 to 200 degrees centigrade. It increases the boiling point of our given liquid. Now, again we have added here copper sulfate, CuSO4. Copper sulfate is added as a catalyst. Okay, so copper sulfate is added here.
तो कॉपर सल्फेट का काम होता है कि यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है उसको एक्सेलरेट करें, ठीक है। एक्सेलरेट करने के लिए और भी कुछ कैटलिस्ट होते हैं, जैसे मर्क्यूरी होता है, कैडमियम होता है, लेकिन वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वी नो द मर्क्यूरी इज पॉइजनस वन, ओके। सो देयरफॉर वी आर यूजिंग द कॉपर सल्फेट चीपली अवेलेबल, ओके। कॉस्ट कम है तो कॉपर सल्फेट इस्तेमाल किया जाता है। देखो कॉपर सल्फेट लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ओके, पोटेशियम सल्फेट भी डाला, और क्या होने वाला है देखो यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट का काम है उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना, ठीक है। चलो यहाँ पर एक पार्ट होगा, यहाँ पर दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, जल्दल फ्लास्क में ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और उसको हीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, देखो यहाँ पर जल्दल फ्लास्क को हम डिस्टिलेशन असेंबली में लगाते हैं। देखो दिस इज आवर डिस्टिलेशन असेंबली, दिस इज जल्दल ट्रैप। सो व्हाटएवर द reaction is here, we have ammonium sulfate which is formed. Now ammonium sulfate is reacted with the NaOH. So here ammonium sulfate, okay, ammonium sulfate react होगा, NH4 taken twice SO4, okay। ammonium sulfate यहाँ पर react होगा, किससे react होगा, यहाँ पर जो हमने NaOH लिया है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन होगी और देखो इसके यहाँ पर क्या लिबरेट होगा, यहाँ पर लिबरेट होगा अमोनिया गैस, ठीक है, अमोनिया लिबरेट होगा। तो यहाँ पर अमोनिया निकल रहा है, NH3 निकल रहा है, तो NH3 ऊपर जा रहा है, यहाँ पर यहाँ से इधर आएगा, यहाँ से नीचे आएगा, है ना। देखो तो क्या होगा, यहाँ पर व्हाटएवर अमोनिया इट इज लिबरेटेड, ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो अमोनिया पास करेंगे कंडेंसर से होते हुए, वो यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर, दिस इज आवर कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। इस कोनिकल फ्लास्क में हमने क्या लिया है, इस कोनिकल फ्लास्क में हमने यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, व्हाटएवर अमोनिया इट इज रिएक्टेड, whatever ammonia it is evolved, it is reacting with the sulfuric acid, and what will happen, again there is formation of ammonium sulfate, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, है ना। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये कोनिकल फ्लास्क लेंगे, वी विल टेक आउट दिस कोनिकल फ्लास्क, ओके, जैसे ये हमारा कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है। और इस कोनिकल फ्लास्क में जो सॉल्यूशन है ना, जिसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है ना, तो यहां से हम क्या करेंगे, अनरिएक्टेड H2SO4 का अमाउंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, उसको कहा जाता है बैक टाइट्रेशन, उस प्रोसेस को कहा जाता है बैक टाइट्रेशन। तो देखो बैक टाइट्रेशन क्या होता है, यहाँ पर हम एक ब्यूरेट से, यहाँ पर क्या करेंगे, ब्यूरेट से हम क्या करेंगे, NaOH ऐड करेंगे, NaOH, है ना। NaOH और H2SO4 की रिएक्शन होगी, क्या बनेगा बताओ, सोडियम सल्फेट बनेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, अनरिएक्टेड H2SO4 कितना है, अनरिएक्टेड H2SO4 कितना है। देखो फिर से एक बार समझा रहा हूँ, व्हाटएवर ऑर्गेनिक कंपाउंड वी हैव टेकन हियर, इट इज रिएक्टेड विद द H2SO4, okay, there is formation of ammonium sulfate, okay, that ammonium sulfate react with the sodium hydroxide here, there is liberation of ammonia gas, okay, this ammonia gas is neutralized by the H2SO4, okay। यहां तक समझ में आया, आगे क्या होगा, देखो यहां पर ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड H2SO4 सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड SPD। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है जिसका वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होता है ना। तो हमें पता है कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है और वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो अमोनिया इससे रिएक्ट होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, तो कितना सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम कर रहा है अमोनिया, वो हम इक्विवेलेंस से फाइंड आउट करेंगे, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ठीक है। अब देखो क्या होगा, कुछ सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर बचेगा, अगर कुछ बचता है मतलब यहाँ पर अगर कुछ सल्फ्यूरिक एसिड है, वो हम फाइंड आउट करेंगे कितना सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल हुआ और कितना बचा, है ना। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको कहा जाता है बैक टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन। तो ये बैक टाइट्रेशन क्या होता है, देखो ये प्रोसेस क्या है, यहाँ पर से हमने
कोनिकल फ्लास्क लिया और उसको टाइट्रेट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और हमको पता चलेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना लगा सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, तो बस यही थ्योरी है इस प्रोसेस की। इससे हम कुछ फार्मूला डिराइव करेंगे और बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लो, बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो इसको मैं यहाँ से देखो, अब तक हमने क्या किया, हमने प्रोसेस समझ ली कैसा होता है। देखो अब हम क्या करेंगे, हमारा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस करेंगे। हमारा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बताता है क्या है, टाइट्रेशन है। देखो टाइट्रेशन किसका हो रहा है, वी हैव एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड वर्सेस NaOH। ठीक है, ये हमारा टाइट्रेशन है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो N1V1 इज इक्वल टू व्हाट, N2V2। ये हमारा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, V1 हमें फाइंड आउट करना है ना। तो V1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, V1 विल बी इक्वल टू, तो इसको रीअरेंज करो, V1 विल बी इक्वल टू N2V2 N2V2 अपॉन N1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें V1 मिलेगा। तो V1 क्या होता है, देखो V1 इज व्हाट, it is volume of H2SO4, volume of H2SO4 which is used। तो अनयूज कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, टोटल वॉल्यूम of H2SO4 sulfuric acid will be equal to total volume V, total volume of sulfuric acid, that is what, V minus V1, V minus V1 which is equal to V dash। तो ये V dash क्या है, ये V dash है वॉल्यूम ऑफ H2SO4 which is used, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 which is used, कितना इस्तेमाल हुआ। और यहाँ पर ये V1 क्या है, V1 है वॉल्यूम ऑफ H2SO4 which is left, और ये V क्या है, ये टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम। सो टोटल माइनस लेफ्ट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू यूज्ड वॉल्यूम। ठीक है, क्या तक समझ में आया। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो, आगे क्या होता है, यहाँ पर हमें इक्विवेलेंस पता है ना। देखो एक बार ये कॉपी कर लो, देखो यहाँ पर हम लिखते हैं, so equivalence of H2SO4, equivalent of H2SO4 react with equivalence of ammonia, ठीक है। अब देखो होता क्या है, इक्विवेलेंस ऑफ अमोनिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, या फिर इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 कैसे फाइंड आउट करेंगे। वी हैव फार्मूला, व्हाट इज द फार्मूला, वी हैव फार्मूला, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंस अपॉन द वॉल्यूम इनटू 1000। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विवेलेंस के लिए फार्मूला क्या बनेगा, इसको रीअरेंज करो, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एनी solute will be equal to, equivalence will be equal to N into V by 1000, इसको 1000। ठीक है, यस देख ये हो गया फार्मूला हमारा। अब देखो इक्विवेलेंस और इक्विवेलेंस ऑफ अमोनिया क्या बनेंगे, इक्विवेलेंस ऑफ अमोनिया will be equal to, that is weight of ammonia upon total weight और weight of organic compound, okay, और ग्राम इक्विवेलेंट weight of ammonia,
ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 के लिए क्या है, इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू N1V1 N1 then this V, say this is N1, this is V dash अपॉन क्या है देखो, अपॉन है 1000। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इक्विवेलेंस ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो इक्विवेलेंस ऑफ अमोनिया कितने हैं बताओ, इक्विवेलेंस ऑफ अमोनिया कितने हैं, वेट ऑफ अमोनिया, वेट ऑफ अमोनिया अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया। ठीक है, ऐसे करें। देखो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें वेट ऑफ अमोनिया फाइंड आउट करना है। तो वेट ऑफ अमोनिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको इधर लेके हम, है ना, तो वेट ऑफ अमोनिया, वेट ऑफ अमोनिया NH3 विल बी इक्वल टू व्हाट, ये इधर चला जाएगा और फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, वी विल हैव N1V dash इनटू ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय 1000, होगा, बिल्कुल होगा, डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, हमें वेट ऑफ अमोनिया निकालना है। तो देखो अब हम कैसे करेंगे, यहां पर लिखते हैं वी हैव 17 ग्राम ऑफ अमोनिया में कितने नाइट्रोजन होते हैं, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, है ना, 17 ग्राम ऑफ अमोनिया कंटेन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर N1V dash इनटू ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया अपॉन 1000 इतने अमोनिया में कितना नाइट्रोजन होगा। ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे बताओ, जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, व्हाट वी विल हैव N1V1 N1V dash इनटू ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया कितना होता है, इट इज 17 into 14 divided by 1000 into weight of ammonia that is 17। तो ये क्या होगा, 17 गेट कैंसिल और हमारे पास क्या बचेगा, सिंपल फॉर्मूला बचेगा N1V dash into 14 upon 1000। ओके, so this is what, this is weight of ammonia, वेट ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, सो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे बताओ, अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे, यहाँ पर एक कॉपी कर लो, इसको मैं रफ कर देता हूँ। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू कितना होगा, देखो वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, देखो तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या बनेगा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू, पुट द वैल्यू ऑफ वेट ऑफ नाइट्रोजन दैट इज N1V dash into 14 अपॉन 1000, इसको 100 करो, इसको क्या करो 100। ठीक है, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको 10 से डिवाइड करो 1.4 हो जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या बनेगा, N1V dash into 1.4 अपॉन व्हाट, यहाँ पर क्या आएगा, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज W, यहाँ पर मैं सीधा W ले लेगा। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। दिस इज हाउ वी हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला। ओके, तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला डिराइव हो चुका है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का। देखो अगर हमारे पास प्रॉब्लम में बैक टाइट्रेशन नहीं है ना, बैक टाइट्रेशन नहीं है तो सीधा ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारे पास बैक टाइट्रेशन है मतलब NaOH का जिक्र है तो हम क्या करेंगे, पहले N1 V1 से ये V डैश कैलकुलेट कर लेंगे और बाद में इसमें इस्तेमाल करेंगे। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें समझ में आएगा। देखो यहाँ पर लिखा है ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जल्दाल मेथड अमोनिया विच इज इवॉल्व। ओके, यहाँ पर अमोनिया इवॉल्व हो रहा है। Ammonia evolved from 0.5 gram of organic compound neutralizes 10 ml of 1 molar H2SO4. Find out percentage of nitrogen. तो सीधा सीधा यहाँ पर बैक टाइट्रेशन नहीं है, W दिया है, ये हो गया हमारा W, ठीक है, ये हो गया V1, ये हो गया N1, ठीक है, लेकिन मोलरिटी में इसको नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो करते हैं। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू N1 इंटू V डैश इंटू 1.4 अपॉन W, ठीक है। चलो तो यहाँ पर N1 दिया है, N1 नहीं दिया, मोलरिटी दी है, तो हाउ टू कन्वर्ट मोलरिटी टू नॉर्मलिटी? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू N इंटू मोलरिटी, ठीक है। ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखें। तो क्या होगा, N फैक्टर कितना है, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए N फैक्टर होता है 2 इंटू मोलरिटी कितनी है बताओ, 1 मोल, तो इसकी नॉर्मलिटी कितनी बनेगी, 2 बनेगी। तो यहाँ पर रखो 2, N1 हो गया 2, V1 कितना है 10 ml। चलो वॉल्यूम पुट अप करो, N1 है 2, ठीक है, इंटू V डैश कितना है, V डैश कितना है देखो 10 ml इंटू 1.4, ठीक है, अपॉन W ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज 0.5, ठीक है। तो कितना परसेंटेज आएगा, ये बनेगा, सो ये 28 इंटू समथिंग बनेगा, ठीक है, 2.8 इंटू 20, सो वी हैव 56%। आप कैलकुलेट कर लेना, 56% ऑफ नाइट्रोजन। सो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना बनेगा यहाँ पर, 56%। यहाँ पर देखो हमारे पास बैक टाइट्रेशन का जिक्र नहीं है, NaOH अगर यहाँ पर लिखा होता तो हम क्या करते हैं, बैक टाइट्रेशन की प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर NaOH नहीं है, इसकी वजह से हम क्या करेंगे, देखो सीधा ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। चलो और कुछ देखते हैं। अब इस प्रॉब्लम में हमको बैक टाइट्रेशन दिया है, 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स इट इज W organic compound was treated by Jaldal method. The ammonia evolved was absorbed by 50 ml means this is volume, okay, 0.5 molar it is, so it is from here N1 calculate, we will calculate N1 H2SO4, then residual acid required 60 ml means यहाँ पर V2 दिया है, m/2 it is N2, normality of NaOH, ठीक है। चलो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, कैसे निकालेंगे देखो, अगर यहाँ पर NaOH दिया है मतलब बैक टाइट्रेशन किया है, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, V डैश कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, वी हैव द फॉर्मूला, व्हाट वी हैव, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। तो बताओ N1 कितना है, देखो नॉर्मल मोलरिटी दी है, उसको नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करो, क्या फॉर्मूला है, N नॉर्मलिटी इज इक्वल टू N इंटू मोलरिटी, ठीक है। तो N फैक्टर कितना है H2SO4 के लिए 2 इंटू मोलरिटी कितनी है 0.5, तो ये नॉर्मलिटी कितनी बनेगी 2 इंटू 0.5 विल बिकम, नॉर्मलिटी बनेगी 1, ठीक है, 1 नॉर्मल। सेम फॉर NaOH, दिस इज व्हाट N1 इज इक्वल टू 1, N2 के लिए क्या करो, सेम करो, N इंटू मोलरिटी, पुट द वैल्यू ऑफ N, NaOH के लिए N फैक्टर होता है 1 इंटू मोलरिटी कितनी है यहाँ पर m/2 मीन्स 1/2, ओके, सो 1 इंटू 1/2 इट इज 1/2, ओके।
तो नॉर्मलिटी कितनी बनेगी 0.5, तो यहाँ पर N2 इज इक्वल टू 1/2 और वी कैन सी इट इज 0.5, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या करेंगे अब V1 कैलकुलेट करना है, सो V1 विल बी इक्वल टू N2 V2 अपॉन N1, ठीक है। तो V1 विल बी इक्वल टू N2 की वैल्यू रखो, N2 है यहाँ पर 1/2 और वी कैन से 0.5 इनटू V2 कितना है, वॉल्यूम 60 ml, ठीक है, 60 ml डिवाइडेड बाय N1 कितना है N1 है 1, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर वॉल्यूम कितना आएगा, V1 आएगा 30 ml, ठीक है। ये बनेगा इसका आधा, ठीक है, 30 ml। तो टोटल वॉल्यूम से इसको माइनस कर दो, टोटल वॉल्यूम से इसको माइनस करना पड़ेगा। टोटल वॉल्यूम कितना है बताओ, 50 ml, ये हुआ टोटल वॉल्यूम। सो 50 माइनस 30 will be equal to, we have 20 ml, okay, 20 ml। तो 20 ml क्या है, V dash is equal to 20 ml। now put this V dash in our formula, what we have, percentage of nitrogen is equal to, our formula is 1.4 into N1 into V dash upon W। तो यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर दो, क्या आएगा बताओ, 1.4 इंटू N1 कितना है, N1 यहाँ पर 1 है, V डैश कितना है, V डैश है 20 डिवाइडेड बाय W कितना है 0.50, तो कितना आएगा बताओ, ठीक है। आपका परसेंटेज आएगा 56%, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज में लिखता हूँ, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 56%, ऐसे करके। So in this way we can solve the problems based on the Jaldal method. Okay. Now take one more. So again saying 0.4 gram of organic compound was treated according to Jaldal method. Okay. The evolved ammonia was absorbed in 50 ml. This is total volume. Okay. Of 0.5 molar H3PO3. The residual acid means it is back titration 30 ml of 0.5 molar calcium hydroxide, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास बैक टाइट्रेशन है, N1V1 का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ठीक है। ये हो गया हमारा एसिड कंपोनेंट और ये हो गया बेस कंपोनेंट, ठीक है। तो एसिड कौन सा है हमारा, H3PO3, ठीक है। तो एन फैक्टर कितना होगा H3PO3 के लिए, स्ट्रक्चर निकालो H3PO3 का, वी हैव फास्फोरस, वी हैव ऑक्सीजन हियर, वी हैव OH एंड हियर H। एन फैक्टर कितना है 2, ठीक है। तो नॉर्मलिटी क्या बनेगी, नॉर्मलिटी N इज इक्वल टू N इंटू M, ठीक है। तो क्या बनेगी, एन फैक्टर कितना है 2 इंटू मोलारिटी ऑफ H3PO4 0.5 इंटू 2 वी हैव 1, नॉर्मलिटी इज 1, ओके। N1 इज इक्वल टू 1, N1 कितना बना 1 है। नाउ N2 क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए एन फैक्टर होता है 2, तो 2 इंटू मोलारिटी कितनी है उसकी 0.5, अगेन N2 कितना बनेगा, N2 बनेगा 1, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला है, N1V1 N2V2 मींस H3PO3 वर्सेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2। चलो यहाँ पर V1 निकालना है, V1 विल बी इक्वल टू N2 into V2 upon N1। Put the value, V1 will be equal to what, N2 कितना है, N2 यहाँ पर 1 है, into V2 कितना है, V2 कितना ml है बताओ, 30 ml, ठीक है, 30 ml, yes it is 30 ml, ओके। नाउ N1 कितना है, N1 है 1, तो ये कितना बनेगा, 1 गेट कैंसिल, वी हैव V1 इज इक्वल टू
30. Now what we are doing, we will do the now total balloon V total minus V1 will be equal to V dash. टोटल वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 50 ml. ओके, सो 50 माइनस 30. ओके, सो V डैश कितना बनेगा यहाँ पर 20 ml. ओके, 20 ml of H2SO4, that is V dash. Now put our formula, percentage of nitrogen. Percentage of nitrogen is equal to 1.4 into N1 into V dash upon W. Okay, put the value 1.4 into N1 कितना है यहाँ पर N1 है 1 into V dash कितना है 20 upon W कितना है यहाँ पर, this is our W 0.4 ग्राम. ओके, 0.4 ग्राम. ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना बनेगा, चलो बताओ. परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपका परसेंटेज आएगा 70%. कर लेना 70%. ये हो गया आपका परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, चलो कॉपी बना लो. सो चाहे प्रॉब्लम कौन सा भी हो, मेथड आपको यहाँ पर ट्रिक ध्यान में रखना है. ट्रिक क्या है बताओ. देखो यहाँ पर आप हमेशा ध्यान में रखना, if no back titration or we can say in bracket no NaOH. अगर NaOH का इस्तेमाल नहीं है प्रॉब्लम में, गिवन नहीं है, तो आप फॉर्मूला इस्तेमाल करो. कौन सा फॉर्मूला डायरेक्टली इस्तेमाल करो, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 into what 1.4 into N1 into V dash upon W. ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है. ठीक है, अगर if back titration is present, back titration अगर है तो क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल N1 V1 is equal to N2 V2. ओके, तो यहाँ पर पहले V2 फाइंड आउट करना पड़ेगा, V1 फाइंड आउट करना पड़ेगा. V1 is equal to N2 V2 अपॉन N1. तो यहाँ पर आपको V1 मिलेगा. ओके, और V total minus V1 will be equal to V dash. First of all we have to find out V dash and then use this formula, same formula. ठीक है, इसको भी कॉपी कर लो. और एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दिस लिमिटेशन ऑफ मेथड, लिमिटेशन ऑफ जल्दाल मेथड, जल्दाल्स मेथड. इस मेथड का लिमिटेशन क्या है देखो, इट कैन नॉट एस्टिमेट द रिंग नाइट्रोजन, कैन नॉट एस्टिमेट ring nitrogen. Okay, or we can say nitrogen of nitro group. और क्या हो सकता है देखो, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव pyridine, है ना. जैसे मान लो मेरे पास क्या है, pyridine है, और मेरे पास क्या है, नाइट्रोबेंजीन है ना. ये हमारी बेंजीन रिंग और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है. ठीक है, ऐसे करें. और हमारे पास अगर डायाजोनियम सॉल्ट है, बेंजीन रिंग N2 plus Cl minus. ओके, डायाजोनियम सॉल्ट है ना. सो जल्दाल मेथड कुड नॉट एबल टू एस्टिमेट नाइट्रोजन ऑफ रिंग नाइट्रोजन, नाइट्रो ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन एंड आजोनियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रोजन. तो किसका इस्तेमाल होगा, सिर्फ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इट कैन एस्टिमेट द नाइट्रोजन. जैसे मान लो मेरे पास क्या है, अमाइन है, मेरे पास एनिलीन है, NH2 है, तो इसका जो नाइट्रोजन है इट कैन बी एस्टिमेटेड, ओनली दिस नाइट्रोजन. ओके, तो अदर नाइट्रोजन, रिंग नाइट्रोजन, नाइट्रो ग्रुप का नाइट्रोजन, डायजोनियम का नाइट्रोजन इससे एस्टिमेट नहीं होगा. ओके, चलो इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा. यहाँ पर हमने पढ़ा कि लिमिटेशन क्या होता है,
चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रिक कौन सी है, कौन सा फार्मूला लगाना है, कब लगाना है, ये भी आप यहाँ पर पढ़ चुके हो। वी हैव सॉल्व सम न्यूमेरिकल। ओके, चलो फार्मूला कैसे लगाना है, हाउ टू कन्वर्ट द नॉर्मलिटी इनटू मोलैरिटी, ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चों को ये नहीं आता है। फार्मूला डिराइव कैसे हुआ है ना, चलो फार्मूला तो हम लर्न कर लेते हैं, लेकिन वो कहाँ से आया, इसकी प्रोसेस क्या होती है, कैसे मिला, और ओवरऑल सेटअप कैसा है ना, ये आज हमने पढ़ा है। ठीक है, सो विद दिस वी विल स्टॉप हियर, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।